کپواڑہ ضلع کے سرحدی علاقے تنگدار خونی نالے میں دوران شب اس وقت ایک بڑا حادثہ پیش آیا جب چوکی بل تنگدار سڑک پر پیدل چل رہے 3 افراد کی موت ہو گئی اور 2 افراد معجزاتی طور پر بچ نکلے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان تینوں افراد کی موت سردی کی وجہ سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق فوج، پولیس اور عام لوگوں کی مدد سے ان کی لاشیں نکالی گئی ہیں اور انہیں ان کے آبائی علاقے تنگدار پہنچا دی گئی ہے۔ علاقے میں لاشیں پہنچاتے ہی کوہرام مچ گیا اور پورے علاقے میں آہوزاری شروع ہو گئی اور لوگوں نے انتظامیہ کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ لوگ الزام عائد کر رہے ہیں کہ انتظامیہ نے کس طرح ان لوگوں کو دوران شب پیدل چلنے کی اجازت دی جبکہ سڑک 1 مہینے سے بند پڑی ہے۔ واضح ہے کہ اس سڑک پر برف باری کی وجہ سے ہر سال کوئی نہ کوئی بڑا اور المناک حادثہ پیش آتا ہے۔ ابھی تک درجنوں انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے لیکن انتظامیہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے اور سڑک کو قابل آمد رفت نہیں بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں مجبوری ہے، ہمیں جانے دو، ہماری روڈ بھی بند ہے، ہمیں کچھ کر کے جانے دو۔ میرے انکل کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہمیں ان کو دیکھنا تو ہے نا، 3 مہینے سے نہیں دیکھا، ایک دن تو دیکھنے دو نا، آج مر کے منہ دیکھنا تو ہے نا۔ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، کس خدا سے مانگے ہم؟ ہمارا روڈ کم سے کم 2 مہینے سے بند ہے، کوئی موومنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ چوکی بل جو فوج ہے وہ کہتی ہے نو موومنٹ۔ اب ان کے سب ہم رشتہ دار ہیں، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی سب ہے۔ ڈی سی صاحب کے سامنے ہم نے احتجاج کیا کہ خدا را ہمارا مسئلہ سن لیجئے، ہمیں اتنا کر دیجئے کہ ہم اپنے جو ہمارے بھائی بندے جو ہیں ان کی تہجید و تکفین میں ہم کوئی بھی ملیٹنٹ حملہ ہو جانے کے بعد اگرچہ ریاستی انتظامیہ علاقے میں سیکیورٹی کو چاق و چوبند کرنے کے دعوے کرتا رہتا ہے، تاہم یہ دعوے کئی بار کاغذی ثابت ہوتے ہیں۔ جموں بس اڈے پر حالیہ دنوں ہوئے گرینیڈ حملے کے بعد اگرچہ سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کے بارے میں بیانات جاری کیے گئے، تاہم زمینی سطح پر حالات اس کے برعکس ہیں۔ پیش ہے جموں سے یہ خاص رپورٹ۔ جموں بس اڈے میں زندگی عام دنوں کی طرح ہی رواں دواں ہے۔ 7 مارچ کو اسی مقام پر ہوئے ایک گرینیڈ حملے میں 2 عام شہری جاں بحق جبکہ 30 سے زیادہ افراد کو چوٹیں آئی تھی۔ حملے کے فوراً بعد پولیس نے بس اسٹینڈ سمیت شہر کے دیگر حساس مقامات پر سیکیورٹی کے سخت بندوبست کرنے کے دعوے کیے۔ یہ دعوے زمینی سطح پر کس قدر عملائے گئے ہیں اس کا اندازہ آپ ان تصاویر سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ بس اسٹینڈ میں داخل ہونے والے راستوں پر کہیں بھی سیکیورٹی کا انتظام نظر نہیں آتا۔ ہر شخص بنا کسی تلاشی کے بس اسٹینڈ میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس صورتحال سے نہ صرف مقامی دکاندار بلکہ بس اسٹینڈ آنے جانے والے دیگر عام لوگ بھی پریشان ہیں۔ اس کے بعد میں بھی سیکورٹی والا سے کوئی نہیں آیا، یہاں بھی دیکھ لو ادھر سے بالکل کوئی نہیں ہے۔ اس دن تو تھوڑا سا آئے تھے، 1 دن آئے، اس کے بعد میں پھر دوبارہ ایسا ہی ہے۔ ہم ڈیلی یہیں پہ آتے ہیں، امرتسر سے جموں چلتے ہیں، تو نارمل جو جیسے پہلے چلتا تھا ویسے ابھی چل رہا ہے۔ ہاں، اس سے جس دن یہ وسفوٹ ہوا تھا اسی دن پہ چیکنگ تھی، اس کے اگلی صبح 10 بجے تک ہوتی ہے اندر آنے کے وقت۔ اس کے بعد کوئی نارمل ہی چل رہا ہے، کوئی یہاں چیکنگ نہیں ہے۔ ایسا حال یہ چل رہا ہے، اگر ایسا رہا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ 2 دن بعد 3 دن بعد دوبارہ حادثہ ہونے کا ڈر ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں سیکیورٹی کے خاصے بندوبست کیے گئے ہیں اور آنے جانے والے مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایس ایس پی جموں تیجندر سنگھ کا کہنا ہے کہ علاقے میں سیکیورٹی کو مزید فعال بنانے کے لیے ایک منصوبہ مرتب کیا گیا ہے جس میں بس اسٹینڈ پر اسکینر نصب کرنے کی بھی تجاویز شامل ہے۔ ہم نے ایک پروجیکٹ کیا ہے، ہم نے ایک لکھا بھی ہے کہ اگر اسکیننگ وہ لگ جائے، بٹ جموں بس اسٹینڈ میں آپ کو فٹ فال دیکھنا پڑے گا، ڈیلی کا دا نمبر از ویری 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 ہیوج۔ تو اس کے لیے ہم نے آلریڈی پروجیکٹ کیا ہے کہ کم سے کم ایسے کچھ اسکینرز ضرور لگیں، تو امید کریں گے آنے والے دنوں میں اگر یہ لگ جائیں گے تو اٹ ول بی بگ ہیلپ فار اس۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی وجہ سے مدد ملی جموں کشمیر پولیس کو، چند ہی گھنٹوں میں پکڑ لیا وہ شخص جس شخص نے بس اسٹینڈ میں گرینیڈ حملے کو انجام دیا تھا۔ لیکن کیا جموں کشمیر پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج پر ہی نربھر رہے گی یا پھر کرنے چاہیے تھے حملے کے بعد پختہ انتظام؟ ویڈیو جرنلسٹ بنٹی کے ساتھ کومل سنگھ، نیٹ ورک 18 جموں۔
किश्तवाड़ के जिला अस्पताल में इसकात हमल के वाकयात पेश आते हैं। मकामी अफराद ने अस्पताल के अहाते में 3 बच्चों की लाशें बरामद की हैं। इतला मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर 2 अफराद को हिरासत में लिया है। अस्पताल में इससे पहले भी ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं। इसी दौरान डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी कसूरवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें लेडीज जो है वो हॉस्पिटल में आई हैं, दर्द थी उनको, और डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के बाद जो है फैसला लिया उन्होंने कि क्या करना है, तो उन्होंने उनके अबॉर्शंस किए हैं। इस पे अगर ऐसा पाया गया तो उस पे जो अबॉर्टेड मटेरियल जो होता है वो अटेंडेंट को दिया जाता है, और अटेंडेंट जो इस तरह अगर नेग्लिजेंस करता है तो उस पर एक्शन जो वारंटेड होगा ला के तहत वो उनके अगेंस्ट। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात का बिगुल बजते ही रियासत जम्मू कश्मीर में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां मुल्क भर में बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियां आपसी इत्तेहाद की राह पर चल पड़ी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इत्तेहाद की बातें सामने आ रही हैं। पेश जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही रियासत जम्मू कश्मीर में भी चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। रियासत की सियासी पार्टियां बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए हमतन कोशिशों में मसरूफ हो गई हैं, और इन पार्टियों से मिल रहे इशारों से लगता तो यही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत की 6 पार्लिमानी सीटों पर चुनाव से पहले इत्तेहाद करने की कोशिशें भी कर रही हैं। इन पार्टियों के लीडर्स का कहना है कि अगर दोनों पार्टियां आपस में गठबंधन करती हैं तो ये बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने में सूदमंद साबित हो सकता है। नेशनल लेवल पे तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपस में किसी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है, और ये हमारे सीनियर लीडरशिप, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट राहुल गांधी और बाकी अन्य लोग, अंबिका सोनी जी हमारी स्टेट की जनरल सेक्रेटरी हैं, वो लोग बैठ के तय करेंगे, क्योंकि समय अब कम रह गया, और जितनी भी ताकतें इकट्ठी हों इस प्रदेश के हालात सुधारने के लिए, मुझे लगता है वो सराहनीय कदम होगा। गठबंधन बनाने से ये होगा कि वोट डिवाइड नहीं होगा, और उन ताकतों को उनसे अच्छी तरह फाइट किया जाएगा अगर हम सेकुलर वोट को एक जगह रख सकें। जराए की अगर माने तो उसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रियासत की 3 पार्लिमानी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आपसी इत्तेहाद कर सकती है। जहां कांग्रेस अनंतनाग, लद्दाख और उधमपुर कठुआ पार्लिमानी सीटों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, वहीं एनसी श्रीनगर, बारामूला और जम्मू सीट पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। दोनों पार्टियां एक दूसरे के उम्मीदवारों की हिमायत करेंगी। वहीं दूसरी जानिब इस सब पर बीजेपी का कहना है कि पार्टियों का कोई भी इत्तेहाद उसे इख्तिदार से दूर नहीं रख सकता। पार्टी का दावा है कि बीजेपी रियासत की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, जितनी भी पार्टियां हैं, ये अगर इकट्ठे होकर अपोजिशन वाले एक ही कैंडिडेट अगर उतारेंगे तो भी इनके कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त होंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बहुत जल्द नई दिल्ली में मुलाकात करके इस जिम्मे में तौर तरीके तय कर सकते हैं, हिकमत अमली बना सकते हैं। उधर सियासी तज्जिया निगारों की अगर माने तो उनके मुताबिक अगर इस तरह का इत्तेहाद सामने आता है तो बीजेपी को नुकसान यकीनी है। ताहम उनका ये भी कहना है कि लीडरशिप की बात अलग है, लेकिन इन पार्टियों के वर्करों को इस इत्तेहाद के लिए तैयार करना दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद मुश्किल काम रहेगा। ग्रास रूट पे भी अगर वो अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाए तो इनका वर्कर्स की स्ट्रेंथ ज़रूर इतनी है कि अगर ये सब इकट्ठे मिलके काम करें तो डेफिनेटली एनडीए को प्रॉब्लम हो सकती है, बीजेपी को ये एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं डेफिनेटली अगर ये सारे मिलके एक साथ काम करेंगे। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या इनके वर्कर्स भी, जो इनके लीडर्स चाहते हैं कि हम लोग जुड़ जाएं, जैसे एनसी और कांग्रेस के लीडर्स चाहते हैं कि हम जुड़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें या इलेक्शन में काम करें, तो क्या उनके वर्कर्स का भी वही सोच है? मुझे लगता है कि ग्रास रूट पे वो सोच नहीं है। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा है कि उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो आपसी सियासी
डिफरेंसेस बुलाकर बीजेपी को रोकने के लिए इकट्ठे हो जाएं। इनको लग रहा है कि अगर वो इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे तो तभी वो बीजेपी को जम्मू कश्मीर में कोई भी सीट जीतने से रोक पाएंगे। ऐसे में अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर एक बार अलायंस करने की सोच रही है। अगर उनका अलायंस होता है तो क्या बीजेपी को उससे नुकसान होगा और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहाँ से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर बडगाम डॉक्टर सहरश असगर ने न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल में इंतखाबी तैयारियों के ज़िम्न में एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में नोडल अफसरान, AROs और दीगर मुतल्लिक़ा हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर सहरश असगर ने शुरका पर जोर दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दें और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के नफाज को यकीनी बनाएं। DOs ने पोलिंग मराकज़ में दरकार ज़रूरी इंतजामात करने की भी हुक्काम को हिदायत दी। मिनिमम फैसिलिटीज़ हर पोलिंग स्टेशन पे होनी चाहिए, उसका भी हमने रिव्यू लिया कि कहाँ तक वो तैयारियां पहुंची है। हर पोलिंग स्टेशन में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए क्या वो है और कब तक मुकम्मल हो जाएंगी। उसके साथ साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़ का कैसा रहना चाहिए, इंटरेक्शन विद एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इकदाम उठाने चाहिए, उसके बारे में भी ये मीटिंग थी। तो एक इंफॉर्मेटिव मीटिंग रही है और सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को इसके बारे में जो है जानकारी दी गई। जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुनक्कदा इस तकरीब का एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर ने उर्दू डिपार्टमेंट के इश्तिराक से किया था। जश्न गुलजार के नाम से मुनक्कदा इस तकरीब में नामवर अदीब, शायर और डायरेक्टर गुलजार ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल भरपूर सलाहियतों से माला माल है और वो हर एक मैदान में अपना लोहा मनवा रही है। तकरीब पर गुलजार ने हाजरीन को अपनी शायरी से महसूस किया। इस मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज कुमार धर भी मौजूद थे। हमारे दरमियान है जो शायरी है और इस वक्त की जो शायरी है वो बड़ी डायनेमिक है, उसमें बड़ा जोश है और बड़ा जोर है। और इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जिस वक्त हालात कॉम्प्लेक्स हों उस वक्त मैं जानता हूँ कि जनरेशन, कोई भी नौजवान जनरेशन खसूसन ख़ास तौर पे, वो रुकती नहीं वो कहने में। और आज की नौजवान जो जनरेशन है, आज की नौजवानों की जो नस्ल है, वो बड़ी डायनामिकली और बहुत ज़ोर के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ अपनी बात का इजहार कर रही है और उसका इस्तकबाल है। मैं तो पीछे हूँ लेकिन वो बहुत आगे हैं। ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्ट की इस वक्त अगर सुनिए शायरी तो मेरा ख्याल है सबसे ज़ोरदार वो ज़बान है। श्रीनगर में आज मुख्तलिफ तजारती तंजीमों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तजारती तंजीमों ने मीर बाज़ मौलवी उमर फारूक को NIA के समन पर अपना एहतजाज दर्ज कराया। इन तजारती तंजीमों में KCCI, FCIK, KEA, KTMF और शहर खास को कोऑर्डिनेशन कमेटी शामिल है। इन तंजीमों ने कहा कि मीर बाज़ उमर फारूक एक मजहबी रहनुमा है और वो कई दहाइयों से समाजी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। कम्युनिटी ऑफ कश्मीर has called this press conference to register our protest at the repeated harassment of leaders, institutions and organizations in Kashmir. Socio-religious institutions are a part of our history. मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने आज मीर बाज़ मंजिल श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्किद की। तमाम सरकर्दा उलमा ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने मीर बाज़ मौलवी उमर फारूक को NIA की जानिब से तलब करने और कुछ तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत की। इस मीटिंग के बाद उलमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मजलिस ने ये फैसला कर लिया कि हम मीर वाइज साहब के साथ, मीर वाइज मौलवी उमर फारूक साहब के साथ यकजहती का इजहार करते हैं और उनका साथ देंगे। NIA का जो फैसला है उनको बुलाने का वो गैर दानिशमंदाना है, नामाकूल है और हम इसकी मजम्मत करते हैं कि किसी भी सूरत में ये मुदाखलत दीन है और किसी भी सूरत में उनको दिल्ली तलब नहीं किया जाए। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या मकसूद है तो उसको श्रीनगर में यहाँ की जाए, क्योंकि यहाँ पे अमन कानून की सूरत हाल पैदा होगी, लोग सड़कों पे आएंगे।
پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر بننے پر عبد الغنی وکیل کا بارہمولہ میں والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر عبد الغنی وکیل نے ڈاک بنگلو بارہمولہ میں پارٹی کنونشن سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں اب لوگ پیپلز پارٹی سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں۔ عبد الغنی وکیل نے NC اور PDP کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کنونشن میں 300 سے زیادہ پارٹی ورکروں نے شرکت کی۔ اتنا مضبوط کہ دو یہاں کے بڑی پارٹیاں مل گئے، سجاد نور کو اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پر بوزن شروع صرف عمر تقریب ہے تھرڈ۔ جموں میں آج ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سمپرتی نامی ادبی تنظیم کی جانب سے منعقدہ اس تقریب کے دوران معروف ادیب و مصنف RL بٹ کی تصنیف کردہ کتاب کل 6 کننے کی رسم نمائی انجام دی گئی۔ اس تقریب میں خاصی تعداد میں ادیبوں اور شاعروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریاستی کلچرل اکیڈمی کے سیکرٹری ڈاکٹر عزیز حاجنی بھی موجود رہے۔ اقبال کے شکوے کا کشمیری میں جواب ہے۔ اقبال نے خود اپنی شکوے، اس کی معروف کتاب ہے اقبال کی شکوہ، اس نے خود بھی اس کا جواب لکھا ہے، لیکن شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کا ایک ہی دونوں ایک ہی پیرائے میں ہیں۔ اقبال کے شکوے کا جواب ہے کہ آدمی کو اتنا تنگ نظر اور تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھگوان ہے وہ پوری سرشٹی کو دیکھے گا، پوری کریشن کو دیکھے گا، پوری کائنات کو دیکھے گا اور اس کے اینگل سے سوچے گا۔ یہ اس کتاب کا میونسپل کونسل اننت ناگ کے صدر ہلال احمد شاہ کی قیادت میں آج اننت ناگ کے بازاروں میں مارکیٹ چیکنگ عمل میں لائی گئی، جس کے تحت چیکنگ اسکواڈ نے مختلف دکانوں اور تجارتی مراکز کا معائنہ کیا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اس دوران کئی چھاوڑی فروشوں اور ایسے دکانداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی جنہوں نے پٹریوں پر ناجائز طور پر اپنی اشیاء رکھی تھی۔ ہلال شاہ نے عوام اور قصبے کے تاجروں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ کے بعد ہم ان کو ایک موقع ضرور دیں گے، مگر ہماری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کوآپریٹ کرے، وہ بھی ایک بیہیو کرے، تاکہ جب ہم سول سوسائٹی ہے، ایک مرکزی شہر، کہاں سے کہاں شہر، اسی ڈسٹرکٹ سے 3 ڈسٹرکٹ نکلے، کہاں کہاں منی سیکٹریٹ بنے، اننت ناگ کتنا پیچھے رہا۔ جب گلی کوچوں میں جاتے ہیں ہمیں کہیں نہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا شہر ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ورڈ 1 میں گھومتے ہیں۔ تو اس شہر کو خوبصورت بنانے میں، اس شہر کی بہبودی کے لیے ہماری گزارش ہے لوگوں سے کہ ہمیں ضلع پلوامہ کے طویل علاقے میں اسپتال کی دیوار بندی کے تعمیراتی کام میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگی سامنے آئی ہے۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ اسپتال کی دیوار بندی کے کام میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔ حال ہی میں دیوار کا ایک بڑا حصہ ناقص مٹیریل کے استعمال ہونے کے سبب ڈہ گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات کے احکامات صادر کیے جائیں تاکہ قصوروار افراد کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ یوکن کہیں تہ ملازمن نظر دژمژ یتھ اندر تھی وچان یت پہ ہائت سیودی میژ بالے پہ انم محترم تہ لجمژ یت سان گزارش یہ تمام محکمس تام یہ کام یس وچھو تہ یہ موقع پہ وچھو تہ تم ژلۍ تہ اختو یتنس لہذا ڈی صٲبس گزارش کران تُہۍ ییٖتو پانہٕ یوٚتو تُہۍ وٕچھتو یہِ دیوار یُس یہِ دِوان چھِ اما یہِ پیٚیا پانے ؤسۍ کِنہٕ یہِ پیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ یہ ہسا صرف لوگن مٹیریل ات ناقص مٹیریل سیک تہ چھاننے بی بال سیٹ یہ گزارش کران SCD صاحبس تھی ڈی صاحبس تھی قومی سرمایہ یہ یوت ہسپتال پریت سات وات۔ سب ضلع ترال میں مجونی کے مقام پر ایک کھیل کا میدان موجود ہے۔ اس میدان میں بڑی تعداد میں شہتوت کے درخت موجود ہیں۔ میدان کافی خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کئی بار سرکار نے اس میدان کو ٹھیک کرنے کے وعدے کیے لیکن ابھی تک کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس میدان کی طرف فوری توجہ دی جائے۔ بہت مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ گراؤنڈ، پچھلے سال بولا تھا ہم گراؤنڈ بنائیں گے مگر ابھی تک کچھ نہیں بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ پتھر ایسے ہی سب کچھ ایسے، کچھ اسٹیڈیم کچھ ہے نہیں۔ یہاں پہ بہت بڑے بڑے درخت ہیں، اگر گر جائیں گے تو یہیں پہ مر جائیں گے تو کھیلنے کی بات تو دور کی ہے۔ ترال علاقے میں مجھے لگتا ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ میں ایسی جگہ کہیں نہیں ملے گی، زمین اویلیبل نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ ہے کہ اس پہ کام کیا جائے، جلد سے جلد یہ تیار ہو جائے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنی گیم جو ہے وہ پلے کریں۔ شیرپورہ پٹن کے لوگوں نے محکمہ بجلی کے خلاف کنزر گلمرگ جانے والے روڈ پر احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے وہ بجلی ٹرانسفارمر نہ ہونے کی وجہ سے گپ اندھیرے میں ہیں۔ احتجاجیوں کا مزید کہنا ہے کہ آج تک انہوں نے کئی مرتبہ متعلقہ محکموں کے دفاتر کے چکر کاٹے، تاہم حکام کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔
ट्रैफिक निज़ाम में खलल के बाद पुलिस और महकमे के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों को बहुत जल्द ट्रांसफार्मर फराहम करने का यकीन दिलाया। पावर मसला ट्रांसफार्म की अत गई 3.5 और दी स्टील खतर ₹2,000 गांव बेकार सारे क्या बचन बच गए स्कूल आब त्रावन स्नान कर आब सोरे बेकार शुरबुरिस में। ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, बार बार जलता है। जब तक ट्रांसफार्मर का लोड कटल नहीं हो जाएगा तब तक ट्रांसफार्मर जलते रहेंगे। अब हमने ट्रांसफार्मर इनका भेजा है सेंट्रल वर्कशॉप। हमारी टर्न थर्सडे के दिन है। थर्सडे के दिन हम एश्योरेंस देते हैं थर्सडे के दिन वापस आएंगे। सुनपा बेरवा में रिहाइश पजीर 11वीं जमात की 2 तालिबात ने शिकायत की है कि उन्हें गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट बेरवा में बार बार एडमिशन देने से इनकार किया जा रहा है। तालिबात का कहना है कि एडमिशन न मिलने की वजह से वो जहनी परेशानियों से दो-चार हैं। जहां मुतासरा तालिबात ने डीसी बडगाम और सीईओ बडगाम से इंसाफ की फरियाद की है, वहीं हायर सेकेंडरी इंतजामिया ने न्यूज़ 18 के कैमरे के सामने आने से इनकार किया। यहाँ पे ट्यूशन्स भी ज्वाइन किए। हम नवंबर में भी एक बार यहाँ पे आए एडमिशन लेने के, लेकिन हमें उस वक्त भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। कहा गया कि नहीं, आपको यहाँ पे किसी भी हाल में एडमिशन नहीं मिलेगा। हम इस वक्त सोच रहे हैं अगर हम यहाँ से हम बडगाम कैसे पहुँच सकते हैं। हमने यहाँ पे मतलब ज़मीन ली मकान के लिए। हम इसीलिए डीसी साहिबा या सीईओ साहिबा से अपील कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर जो हमारा कैरियर है वो मतलब ख़त्म होने की दादार पर है, तो प्लीज़ हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। गांधरबल के नेशनल फिश फीड फार्म मानसबल में फिश फार्मर्स मेला मुनक्किद किया गया। रीजनल फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी कश्मीर डिवीजन के ज़रिए मुनक्किद इस मेले में महकमे फिशरीज के ओहदेदारों ने शुरका से तबादला ख्याल किया और उन्हें फिश फार्मिंग की मुख्तलिफ स्कीमों से वाकिफ कराया। महकमे फिशरीज के डायरेक्टर RN पंडिता मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मेले का मकसद बेरोजगार नौजवानों को इस शोबे से मुताल्लिक जानकारी फराहम करना और उन्हें मछली पालन की तरगीब देना था। हमारे फिशरीज के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं और जो दिक्कतें ये फील करते हैं मतलब फिश फार्मिंग में उनको कैसे अजाला किया जाए उसके बारे में भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो इनको हमेशा बताते रहते हैं। लेकिन आज खुसूसी तौर पर ये आमने सामने इंटरेक्शन है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौजूद आइस स्केटिंग स्टेडियम में इन दिनों आइस स्केटिंग मुकाबले और कोचिंग भी जारी है। इन मुकाबलों में रियासत और दीगर रियासतों के बच्चे हिस्सा लेते हैं, वहीं बच्चे तरबियत भी हासिल करते हैं। इन मुकाबलों का एहतमाम जम्मू कश्मीर आइस स्केटिंग एसोसिएशन कर रहा है। गुलमर्ग में बच्चों ने आइस स्केटिंग मुकाबलों में हिस्सा लेने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि गुलमर्ग आइस स्केटिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ विंटर गेम्स है उसका भरपूर फायदा उठाए बच्चे और स्पोर्ट्स के साथ रुझान रहेगा ताकि स्पोर्ट्समैन जो है वो आगे अपने स्टेट का मुल्क का नाम रोशन करेगा। सयाहती मकाम गुलमर्ग में सरमाई खेलों खासकर स्कीइंग के लिए महकमे सयाहत का स्कीइंग शॉप मौजूद है और गुलमर्ग में जहां मुल्की व गैर मुल्की स्कीइंग के लिए आते हैं तो वहीं कश्मीर के मकामी लोग भी खासी तादाद में स्कीइंग के लिए गुलमर्ग का रुख करते हैं। यहाँ लोग खास कर नौजवान स्कीइंग की तरबियत हासिल करते हैं, कुछ तो सैर तफरी की गर्ज से शौकिया दिन भर स्कीइंग करते हैं। सरमाई खेलों के फरोग और नौजवानों को सरमाई खेलों की जानिब रागिब करने की गर्ज से गुलमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से जदीद किस्म के साजो सामान दस्तियाब रखे जाते हैं। यहाँ पे स्की शॉप हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है, सबको कोर्सेज करने को मिलते हैं और हर एक टाइम अवेलेबल होता है। बाकी बाज भी है, सीखने के लिए बहुत मिलता है। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, क्लाइमेट भी बहुत ही अच्छा है कश्मीर का और स्कीइंग में भी बहुत मज़ा आया। हम जब यहाँ पे आए थे तो स्नोफॉल भी शुरू थी, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, सभी लोग भी बहुत फ्रेंडली है। कश्मीर का मतलब जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। स्कीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्कीज जो है इक्विपमेंट जो है नए हैं बहुत। 2 दिन से हम स्की कर रहे हैं, वहीं से ले रहे हैं स्की, तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं इसी स्की शॉप पे, तो स्की करने में बहुत मज़ा आ रहा है। डिपार्टमेंट में एक गवर्नमेंट रन जो स्की हायर शॉप है, उसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी शॉप्स हैं, तो हमारे पास स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग के रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए हैं वो सब दस्तयाब हैं। भले ही वो स्कीज़ हों, स्नो बोर्ड्स हों या बाकी जो सेफ्टी गियर है, जो सेफ्टी इक्विपमेंट है जैसे ट्रांसीवर्स हैं या शॉवल्स हैं या प्रोब्स हैं, वो सब यहाँ पे। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने आज बांडीपुरा का दौरा करके झील वुलर पर जारी काम का जायजा लिया। दौरे के दौरान मुशीर
को वुलर में जारी हाई टेक ड्रेजिंग के बारे में जानकारी दी गई। मुशीर ने बाद में चितरनार फॉरेस्ट डिवीजन का दौरा करके वहां शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया।